Hi guys, I welcome you all once again on Inside SS YouTube channel. This is Vishali and we are going to cover part 3 of the current affairs series that we are already doing, that is FCAT 1 2024. Make sure that you complete FCAT current affairs series part 1 and part 2 because they're equally important, and let's begin with the video without wasting any more time. So, starting away with the question, that is, which country recently exited from China's Belt and Road Initiative? You know about this initiative. China seeks to connect with a lot of countries using this initiative because उन्हें अपने business की growth करनी है, and दूसरे countries में of course जाके you guys are pretty well aware about the tactics of China, I guess. So Asian countries जितनी भी हैं, African nations जितने भी हैं, और साथ साथ European nations जितने भी हैं, उनके साथ क्या करना है? There are almost 150 countries जिनके साथ ट्रेड इंक्रीज करना चाहता है, इंटीग्रेशन, रीजनल इंटीग्रेशन चाहता है चाइना, है ना. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, इससे Italy has denied that it will no more be a part of it, and it has exited from China's Belt and Road Initiative. This is what you need to know. Coming to the next one, that is, which company has recently entered in Maharatna company? So, total, how many Maharatnas are there? You have any idea? Tell me how many are there in total. नीचे जल्दी से कमेंट करो. सो अभी रिसेंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, दैट इज ऑन August 3, 2023, इसको महारत्ना स्टेटस जो है, दिस हैज बीन गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ध्यान देना, कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है इंडिया की? जल्दी बताएं. सो दिस इज गिवन, और इसका जो हेडक्वार्टर है, ऑयल का जो हेडक्वार्टर है, दिस इज इन दुलाई जन, दैट इज इन असम. ठीक है, याद रखना. ऑयल जो है, दिस इज अ गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज, एंड इसका जो मेन काम है, दैट इज एक्सप्लोर करना, डेवलप करना, जहाँ पे भी क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, ठीक है, और इन सारे क्रूड ऑयल एक्सेट्रा को, इवन लिक्विड पेट्रोलियम गैस वगैरह को क्या करना? मैन्युफैक्चर करना, ट्रांसपोर्ट करना, बिकॉज क्रूड ऑयल से ही ये सब चीज़ें बनती हैं. ठीक है. Coming to the next one, that is recently who has been invited as chief guest on the Republic Day parade. ठीक है. So Emmanuel Macron जो है, he is what? He is president of France, so he was called upon. Along with this, you should also know कि Ministry of Culture का जो tableau था, the theme was India, mother of democracy. ठीक है. This was the one. And along with this, you should also be aware that इस बार पूरा का पूरा focus was on नारी शक्ति. First time ऐसा हुआ है कि ट्राई सर्विस का women contingent was there, that was basically projected this time, and it's a big thing. And this time also the kind of parades and everything that we have seen, हर जगह पे women का काफ़ी ज़्यादा शो किया गया था, because नारी शक्ति जो था, that was being shown this time. उसके बाद बात करते हैं next, that is who amongst the following became first Indian women जिनको इंडक्ट किया गया है in ICC Hall of Fame. So इसका जो आंसर है, that is Diana Adalji. If you can see, this is the right answer. अगर पूछा जाता है who is the first Indian जिनको इंडक्ट किया गया है, अगर first Indian की बात आती है, इसका आंसर क्या होगा? Will be Bishan Bedi. Okay, and this particular thing, that is ICC Hall of Fame, this is in hands of total 8 Indian cricketers जिनके पास है. जल्दी जल्दी नाम बता देती हूँ, you should know it because एग्जाम में आ सकता है. The first one is सुनील गावस्कर. अभी आपको मैंने बिशन सिंह बेदी के बारे में बताया, that's the thing. Then उसके बाद कपिल देव, अनिल कुंबले, ठीक है, राहुल द्रविड़ के पास भी है, और इसके अलावा सचिन तेंदुलकर जो है उनके पास भी, फिर वीनू मनकन जो है उनके पास भी है, और देन Virendra Sehwag, he also has been inducted into ICC Hall of Fame. Okay. Coming to the next one, this is regarding Indian Army's first vertical wind tunnel. Where exactly it is? This is the question that is asked. और जो wind tunnel है, this has been an addition by Indian Army for special forces because they need to prepare in contemporary battlefield जो होता है, उसमें efficiently वो करने के लिए they need the experience exactly कैसा होगा. So this has been inaugurated in Special Forces Training School in Himachal Pradesh. So इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश. Moving on to the next one, 8th wonder of the world. This is actually unofficial. Why? Because officially तो सिर्फ और सिर्फ कितने
allowed है. There are only 7 wonders in the world, but lately this had been added as 8th wonder. Answer क्या है इसका? Angkor Wat. This was a competition between Angkor Wat and Pompeii. Pompeii कहाँ पर है? It is in Italy. And Angkor Wat कहाँ है? This is in कंबोडिया. ठीक है. एंड एंकोर वैट जो है इट हैज टेकन द 8th पोजीशन. मतलब दोनों के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन रहा है. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, आज की डेट में लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर ग्लोबली. ठीक है. This is what you need to know. And it also has architectural मतलब अगर हम बात करें excellently built. And with addition of this particular thing in the list, अब हो जाते हैं 8 wonders in the world. Okay. Now with this I feel कि 7 wonders इस बार आने के chances एग्जाम में. Christ the Redeemer ये कहाँ पर है? This is in Brazil. Okay. उसके बाद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना में है, ये तो पता चल ही गया होगा. पेट्रा जो है दिस इज इन जॉर्डन. ओके. माचू पिच्चू दिस इज इन पेरू. देन चिचिन इट्जा दिस इज इन मेक्सिको. ठीक है. कोलोजियम जो है ये कहाँ है? दिस इज इन इटली. एंड ताजमहल तो अपना खुद का ही है, हम जानते हैं इंडिया में है, राइट. सो ये सारे हो गए हमारे 7 वंडर्स एंड इसके अलावा +1 8 दैट आई जस्ट डिस्कस्ड विद यू. Coming to the next one, that is Divyang Sports Award, जो male category में है. It is won by whom? So it is by javelin thrower. His name is Sumit Antal. ठीक है, he throws javelin. So this is what you can remember. The next one is in the female category. It is won by Sheetal Devi and she is what? She is an archer. ठीक है. Then best male and female आपको समझ आ गया. अब इसके अलावा शीतल देवी she also becomes first Indian to win Best Youth Athlete Award of the Year. ठीक है. Asian Awards 2023 में. So this is extremely important because firstly female category में है, ऊपर से first who is who है. So I've already told you this is very important. Okay. Coming to the next question, this is match the following. So the first one says that Sudarshan. What exactly is Sudarshan? Sudarshan जो है इसको हम मैच करेंगे S-400 Air Defense Missile System. So अभी recently Air Chief Marshal V.R. Chaudhary he has named S-400 Air Defense Missile System जो हमने import की हैं अभी रशिया से after the सुदर्शन चक्र. ठीक है. किस पे? सुदर्शन चक्र के ऊपर इसका नाम जो है रखा गया है, दैट इज सुदर्शन. सो टेक अ नोट ऑफ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आता है साब. साब दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द स्वीडन्स कंपनी. सो इट हैज मेड अ हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फॉरेन कंपनी टू रिसीव एन अप्रूवल फॉर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज डिफेंस प्रोजेक्ट्स. ठीक है. सो फर्स्ट है. फर्स्ट हु इज हु आपको वैसे पता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद आता है इंडियन नेवीज एडमिरल. सो जितनी भी रैंक्स हैं अभी उसमें कुछ चेंजेस देखे गए हैं. नॉट जस्ट एडमिरल, देयर हैड बीन चेंजेस इन रियर एडमिरल. ठीक है. एंड इसके साथ साथ वाइस एडमिरल एज वेल. ठीक है. सो व्हाट चेंजेस कैन यू सी? ये देखिए ध्यान से, दिस इज द चेंज. द फर्स्ट थिंग इज दैट देर इज अ गोल्डन बटन ऑन द टॉप इफ यू कैन सी एंड देर इज अ octagon here. Octagon is here. Okay. And then Indian sword here, it is crossed with a telescope, okay, and then followed by the stars which indicate the ranks of admiral, vice admiral, okay, and rear admiral. I hope this is clear. So this is new design for the Indian Navy ranks. उसके बाद आता है 1 तारीख 1 घंटा drive. So this is a campaign for Swachhta and this time Indian Air Force has taken a part in it and that's why it is very very important. Okay. Then the next one is again match the following statements. So AI Safety Summit 2023, where exactly was it held? It was held in UK, okay, and it is first global artificial safety summit, okay. First है, that is why it is important. Then first AI school जो इंडिया में establish किया गया, where exactly it is in Kerala. And coming to Mika, can you see this? So she is the first CEO. She is a humanoid robot and is working based on AI. So first company developed leader using AI. Answer is Mika. And then world's largest meditation center has been recently opened in Varanasi. Okay, so this is it.
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज रिगार्डिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल. फेस्टिवल एक नया ट्रेंड है जो स्टार्ट हुआ है, पहले से सीजीएल एग्जाम में देखने को मिला था, एंड नाउ इट इज ऑल्सो स्टार्टेड इन इफकैट, बिकॉज इफकैट काफ़ी कुछ सेम ट्रेंड फॉलो करता है. जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद टाइज ऑफ प्रोटेक्शन. ठीक है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे ऑफ कोर्स, एंड द वन ऑफ देम वाज रक्षाबंधन. सो ये तो आप बहुत ईजिली बता पाते, लेकिन अब क्या हो रहा है, व्हेन वी टॉक अबाउट इफकैट दे आस्क अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के फेस्टिवल्स. ठीक है, जैसे बिहू जो है दैट इज ऑफ आसाम. ठीक है, मैं आपको स्टेट वाइज बताती जाऊंगी एंड आई गेस इट विल बी हेल्पफुल. ठीक है, देन वी टॉक अबाउट हॉर्नबिल. हॉर्नबिल जो है ये कहाँ का है, नागालैंड का है. एंड अलोंग विद दिस देर इज अनदर वन एज वेल विच इज नोन एज मोआत्सु मोंग. ठीक है, ये कल्चरल फेस्टिवल है सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन के लिए. तो प्लीज लिखते चलना जो जो मैं आपको बता रही हूँ. दूसरा इज लुई नगाई नी. ठीक है, ये वाला जो है दिस इज इन नागालैंड एंड मणिपुर, अगैन सीड सोइंग सीजन के टाइम पे होता है. ठीक है, उसके बाद आम्बुबाची मेला भी एक लगता है असम में, आम्बुबाची मेला. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली माँ कामाख्या जो है उनका मेंजुरेशन जो टाइम होता है, व्हेन शी मेंजुरेट्स, इट्स कंसिडर्ड लाइक दैट. इट्स इन गुवाहाटी. सो दिस इज वेरी वेरी फेमस फॉर इट. ओके, उसके बाद आता है सिक्किम. ठीक है, सो सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम में जो फेमस है दैट इज सागा दवा. ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है एंड यहाँ पर पूरी गौतम बुद्ध की जितनी भी लाइफ है, बर्थ से लेकर डेथ तक, उनकी टीचिंग, उनकी एनलाइटनमेंट सब कुछ है. उसके बाद नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश का जो फेमस है एक तो लोसार है. ठीक है, लोसार फेस्टिवल जो है इट इज़ एक्चुअली तिब्बतन न्यू ईयर को मार्क करता है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज हॉर्नबिल, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नागालैंड का है. ओके, एंड इट्स 16 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो हैं वो इसमें अपना पूरा कल्चर शो करती है एंड एवरीथिंग. उसके बाद आता है लासूंग. लासूंग फेस्टिवल जो है वो भी सिक्किम का है, लासूंग फेस्टिवल. ठीक है, और ये जितने भी फेस्टिवल स्पेसिफिक टू सिक्किम हैं ये रिलेटेड हैं भुटिया चीज़ों से. ठीक है, भुटिया ट्राइब्स, देयर आर 2 ट्राइब्स, भुटिया एंड लेप्चास. ठीक है, सो उसका हार्वेस्ट पीरियड बताता है, मैं लिख देती हूँ, भुटिया एंड लेपचास. ठीक है, और एक और बात, अभी ना लक्षद्वीप काफ़ी ट्रेंड में रहा है लेटली, सो एग्जाम में काफ़ी अच्छे चांसेस है लक्षद्वीप आइलैंड से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश का म्योको फेस्टिवल. ठीक है, म्योको फेस्टिवल इज 1 month लॉन्ग फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. फिर आता है तोर गया. तोर गया जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश का है. ठीक है, फिर आता है नोंगक्रिम. नोंग क्रिम डांस फेस्टिवल, ये मेघालय का है एंड इट्स मार्क्स हार्वेस्टिंग का एंड. देखो, या तो हार्वेस्टिंग का एंड होगा या स्टार्टिंग होगा, ये ध्यान रखना है आपको. ठीक है, उसके बाद आता है मोपिन. मोपिन जो है ये अरुणाचल प्रदेश का ही है. ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, मोपिन ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है. उसके बाद आओलिंग. आओलिंग जो है ये नागालैंड का है. ओके, एंड उसके बाद आता है वंगकला. वंगकला इज अगेन मेघालय, वंगकला फेस्टिवल. ओके, उसके बाद आता है जीरो म्यूजिक फेस्टिवल. ठीक है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी बताओ, जीरो कहाँ है, वेयर इज दिस लोकेशन, कौन से स्टेट में है. अब इसमें से सबसे फेमस कौन कौन सा है, द फर्स्ट वन इज बिहू. ओके, उसके बाद लासूंग फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हॉर्नबिल तो आप जानते ही हैं इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मोपिन आने के भी अच्छे से चांसेस हैं कि देयर माइट बी अ चांस आपको देखने को मिले. नोंगक्रिम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मतलब मैंने आपके साथ जो जितने भी शेयर किए ना, मेजर इंपॉर्टेंट वाले ही हैं. ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके लिए मार्क कर देती हूँ सो दैट आप उसे अलग से पढ़ पाएँ. दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज खेलो इंडिया 2024 कहाँ पर होस्ट होने वाले हैं, मतलब कौन से स्टेट में. सो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु. काफ़ी सिटीज़ हैं जैसे कि चेन्नई, मदुरई, त्रिची, कोयम्बतूर, यहाँ पर होस्ट हुए हैं इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स. और ये इसका कौन सा एडिशन था, 6th एडिशन था. दे माइट ऑल्सो आस्क कि मेडल टैली में फर्स्ट कौन रहा है, बिकॉज ऑलरेडी ये होस्ट हो चुके हैं. फर्स्ट जो पोजिशन रही है दैट इज ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, और जो सेकंड पोजीशन रही है दैट इज ऑफ तमिलनाडु, और जो थर्ड पोजीशन रही है दैट इज ऑफ हरियाणा. ठीक है,
महाराष्ट्र के कितने गोल्ड मेडल्स रहे इस बार? 57 गोल्ड मेडल्स, वेयर एज तमिलनाडु के 38 एंड हरियाणा के 35. दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर. अलॉन्ग विद दिस मैस्कट ऑल्सो गेट्स अ बिट इम्पॉर्टेंट. मैस्कट इस बार क्या रहा है? फ्रीडम फाइटर को डिनोट करने के लिए इस बार रहा है, एंड इट हैड बीन वीरा मंगाई वेलू नचियर. ठीक है, याद रहेगा. एंड दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट एग्जैक्टली? ये ब्रेव वुमेन को शोकेस करा बिकॉज शी वाज द फर्स्ट इंडियन क्वीन टू गो अगेंस्ट ब्रिटिश रन रूल इन ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड शी वेंट अगेंस्ट देम फॉर द वॉर. दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क कर लो. दे माइट आस्क यू दिस क्वेश्चन फॉर श्योर इन द एग्जामिनेशन. ओके, उसके बाद खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स होने वाले हैं वो कहाँ होस्ट होंगे? वो गुलमर्ग में होस्ट होंगे. ये भी आप एक इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हो. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिया का जो फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है वो कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हो रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज फर्स्ट हु इज इंपॉर्टेंट एंड द आंसर फॉर द सेम इज हैदराबाद. इसके अलावा यू शुड नो अबाउट सूरत एज वेल, दैट इट इज नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड डायमंड हब सिटी. ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है. वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ना, एंड यूएस को भी इसने पीछे छोड़ दिया है. सो दैट्स वाई इट्स अ बिट वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आती है इंडिया की केरला की बात. फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव हॉलमार्किंग सेंटर इन ऑल द 14 डिस्ट्रिक्ट्स. जितने भी 14 डिस्ट्रिक्ट है सबके अंदर है. So hallmarking center, this is why it is a bit important. Coming to the next one, that is which of the following country is world's largest milk producer? इसका जो आंसर है वो अपना खुद का देश है, that is India. That's why it gets a little important. Okay. Coming to the next one, that is who amongst the following has been chosen as the winner of Sakharov Prize for Freedom of Thought 2023. This is very important. और इसका जो आंसर है that is Gina Mahasa Amini. Talking about the next one, that is B.R. Kamboj. इनको कौन सा अवार्ड मिला है? MS स्वामीनाथन अवार्ड. ठीक है, 2023. So remember this, important है थोड़ा. Moving on to the next important thing, the first who is very important, and specifically अगर कोई women है, so Air Marshal Sadhana Saxena Nair, she takes charge as Director General Hospital Services Armed Forces, and she becomes the first lady officer to hold this position. इसलिए थोड़ा important है as per exam perspective. Coming to the next thing, that is INS Imphal. अभी lately news में काफ़ी रहा है, and राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी अनवेल किया है, and that's why it's important. ये डेवलप किया गया अंडर प्रोजेक्ट 15B, and what exactly it is a Visakhapatnam class guided missile destroyer. ठीक है, याद रखना है. उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंडिया हैज लेटली अचीव्ड ग्लोबल फर्स्ट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग आकाश मिसाइल सिस्टम, जो कि एक साथ एंगेज हो सकता है 4 एरियल टारगेट्स के साथ, और इसकी जो रेंज है दैट इज 25 किलोमीटर्स. ठीक है, सो किस टाइप की हुई, जल्दी से बताएं. मिसाइल आकाश किस टाइप के मिसाइल है? इट इज़ एयर टू एयर है या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल है. ठीक है, दैट इज सरफेस टू एयर को हम सैम बोलते हैं. ठीक है, सो क्या है इसका आंसर, जल्दी बताओ. Coming to the next one, that is India and which country hosted their first naval exercise in Gulf of Guinea? इसका जो आंसर है that is EU. EU has participated. And talking about the next important thing, that is exercise Bright Star 23. इंडिया फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज का पार्ट रही है, एंड दिस इज एन एक्सरसाइज जो कि मल्टीलेटरल है. ठीक है, मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी नेशंस हैं इसके अंदर, और साथ साथ नॉट ओनली मल्टीलेटरल बट ऑल्सो इट इज़ अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज. ठीक है, मतलब तीनों सर्विसेज जो हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज कहाँ होस्ट हुई थी? इट वाज इन कायरो. कायरो कहाँ पर है, जल्दी बताओ. वेस्ट एयरबेस जो था वहाँ पर ये होस्ट हुई थी, एंड इट इज़ इन इजिप्ट. ओके, कायरो इजिप्ट में, एंड दिस इज ऑल यू नीड टू नो. इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज INS वजीर. INS वजीर हैज़ मेड अ हिस्ट्री बाय रिकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट एवर डिप्लॉयमेंट बाय एनी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन. ठीक है, स्कॉर्पिन, you should also know that which class submarine it is. So by Scorpion class,
सबमरीन, आज तक की लॉन्गेस्ट इसकी डिप्लॉयमेंट रही है. एंड दिस सबमरीन हैज़ कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 7,000 किलोमीटर्स ऑन इट्स जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया, और इसने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में भी पार्ट लिया है. सो दिस ऑल इज इम्पॉर्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज रिगार्डिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023. So India's rank this time had been 111, and that's really bad because severity की बात है when it comes to hunger, and out of 125 countries this rank had been there. Okay, there are indexes that are very very important, and every time when we see FCAT index वाले questions आते ही आते हैं. Okay, so these are the most important indexes as we see, but इसमें से the most important ones are, the first one is this global terrorism index. इसमें the rank had been 13, and जो top किया है that's given on the side. ठीक है, so Afghanistan had been on rank 1. Then global competitive index, India की rank had been 40th, whereas first जो है that is of Denmark. Then the next one that is very important is Henley's passport index. Okay, so as per to the report, Singapore has topped and India's rank had been 80th this time. फिर आता है hunger index that I already told you. Democracy index में India's rank is 108, whereas we consider ourselves as the world's biggest democracy. Okay, उसके बाद inclusiveness index जो है 117, टॉप किया है न्यूजीलैंड ने. Happiness report की बात करें, so Finland has topped, it tops almost every time, and India's rank had been 126. Moving on to gender gap index, Iceland जो है that's first and 127 is India. उसके बाद world press freedom index, now this is extremely important. India's rank had been 161 out of total 181 countries, and that's really really bad. ठीक है, so these are the most important ones which I've marked. Coming to the next one, that is National Press Day, observed on which date? अभी we discussed what? We discussed freedom of press, और हमारी देश की जो value है 161 है out of 180 countries. Think about it, है ना? And at the same point in time हम बात करते हैं importance of freedom of press and independence of press, whereas it's quite sabotaged in our country. Answer क्या है? A, that is 16th of November. With this, days and themes बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब 100% one question will come out of it. Themes and days I've already discussed on Telegram, something like this. मैंने match the following के फॉर्म में आपके लिए डाला था. Please make sure that you go and attempt it. Also answer down. ये जो part 2 है, this is specifically for you. Answer down below. Also talk about the themes. Themes भी करो, जिसका सबसे सही आंसर लगा वो मैं पिन कर दूंगी, and everybody जो भी आलसी है जाके उसमें से at least please just revise it once. Okay, let's talk about World Wildlife Day. When is it celebrated? First का answer is World Wildlife Day, that is 3rd of March. Then World Environment Day, I guess all of you already know it, it's 5th of June. इसका theme is very important. जल्दी से theme देखो. World Food Day, it is celebrated. 3rd का answer is G, that is 16th of October. National Youth Day जो है that is celebrated on 12th of January. उसके बाद आता है International Day of Action for Rivers. इसका जो आंसर है that is 14th of March. उसके बाद आता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे, इसका आंसर इज 21st of April. देन नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है, इसका भी इंपॉर्टेंट है थीम, प्लीज इसका थीम देख लेना. 8th का इट इज बी, दैट इज 24th of April. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रेस फ्रीडम डे. इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? 3rd of May. प्लीज कंफ्यूज मत करना, मैंने नेशनल प्रेस डे बताया था, अब जो है इट्स प्रेस फ्रीडम डे. ओके, डोंट इंटरमिक्स टू थिंग्स. देन 10th वाला जो है दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इसका जो आंसर है दैट इज ई, 22nd of May. फिर आता है वर्ल्ड ओशंस डे, इसकी भी थीम थोड़ी जरूरी है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक इट. 11th का आंसर इज एन, दैट इज 8th of June. इंटरनेशनल योगा डे, इसका जो आंसर है दैट इज 21st of June. इंटरनेशनल चेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th of July. इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑन 29th July. एंड वर्ल्ड वेटलैंड डे is celebrated on which day? 2nd of Feb. Okay, और 9th of January क्या हो गया? It is प्रवासी भारतीय दिवस. Okay, in 2024 we have already celebrated World Wetland Day. इसका जो theme क्या रहा है इस बार? It's wetlands and human well-being, right?
और भारतीय प्रवासी दिवस का क्या रहा है? इट इज डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल. ठीक है, अब ये पार्ट 2 जो है दिस इज फॉर यू. जल्दी से कंप्लीट करो नीचे एंड लेट मी नो द आंसर्स. ओके, coming to the next and the last thing in here. So Nobel Prize winners, and after that we will be done with part 3 and we'll be done with this series altogether, because I will be covering defense और current affairs तो मैं already आपके cover करा चुकी हूँ. Sports और करंट अफेयर्स उसके अलग से कवर होंगे और अवार्ड्स और उसके करंट अफेयर्स अलग से कवर होंगे. ठीक है, सो दिस विल बी सेपरेट वीडियो. इसके अलावा एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी कवर्ड फॉर यू एंड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स विल बी देयर. जस्ट कवर ऑल दीज वीडियोज दैट आई हैव टोल्ड यू. And this will be more than enough for your current affairs section when it comes to IFCAT exam. Make sure you're also following the Telegram channel, because wahan pe I've been helping you out with the question practice. Make sure that you go through all of it. Okay. Now Nobel prizes, if I talk about literature में John Foss जो हैं उन्हें मिले हैं. Chemistry में there are 3 people: Maungi, Louis and Alexei. ठीक है, so just remember these 3 important words. MLA से याद रख लेना. आई होप यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ मेक इट आउट कि क्या है एग्जाम में आंसर. ओके, देन टॉकिंग अबाउट फिजिक्स. फिजिक्स का जो है दैट इज पेरे. ठीक है, पेरे NA इन फ्रांस ऐसे याद रख लेना. फेरेंक NA पेरे. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट. मूविंग ऑन टू द पीस, दैट इज नरगिस मोहम्मदी. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनके बारे में पार्ट 1 में आई ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स विद यू, सो आई गेस यू मस्ट बी रिमेंबरिंग इट. देन टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक साइंसेस, क्लॉडिया गोल्डन. ठीक है, गोल्ड, सो एवरीथिंग is related to economics and gold, money, this and that. So Claudia Golden. And medicine में है Drew and Catalan. Okay, so remember all of these, very important, and I hope the series would have been quite useful for all of you. And make sure जो upcoming 2-3 videos हैं उन्हें अच्छे से कर लेना. That is all you will need, and all the best. Keep working smart and I will make sure that your name will be in the list.